Yes, yesterday we learnt about some certain verbs after which there is an object required, and if there is no object after them, we must use, hello dear, we must use a reflexive pronoun, means a pronoun with self or selves as an object according to the subject. And in this series of verbs, the last verb we learnt was, I think, introduce, right? सर आपका आवाज बहुत कम है. अच्छा, अभी आ रहा है सही? अभी सही आ रहा है? Yes, Yes sir. sir. Okay. The last word in this series we learnt was introduce. हम लोगों ने ही सीखा था ना लास्ट में, इंट्रोड्यूस. नेक्स्ट वर्ड इज prostrate. Prostrate is an English word. Its Hindi equivalent is दंडवत प्रणाम करना. Do you have any idea what it means? दंडवत प्रणाम करना का मतलब जमीन पर लेट कर एकदम प्रणाम करना. You might have seen this thing in Chhat Puja. Many of the Chhatvrati ladies offer pranam to Lord Surya or God Surya by laying on the ground. बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ज़मीन पर लेट कर छठ पूजा में सूर्य को प्रणाम करती हैं. दे आर डूइंग दंडवत प्रणाम. दे आर प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स. शी प्रोस्ट्रेटेड herself before God Surya. Did you understand? He prostrated himself before his master. उसने अपने मालिक को दंडवत प्रणाम किया. दंडवत मतलब एकदम जमीन में लेट कर. He prostrated himself before his master. The Chhatvrati ladies prostrate themselves before God Surya. I hope you understood, guys. Tell me yes or no. Clear है बच्चों? Yes sir. Yes, sir. The next word is Yes busy. sir. Okay, very good. The next word is busy. What it means? Busy can be used in two ways, as an adjective and as a verb also. Most of the people use it as an adjective. I am busy. You are busy. She is not busy. Okay? आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ. मैं क्या करने में व्यस्त हूँ? मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ. आई एम बिजी टीचिंग यू. Not in, not any preposition. I am busy in teaching you is not correct. I am busy teaching you. Okay? रोशनी, रोशनी. Yes, very good. I am busy teaching you. Okay? The child is busy with his toys. Busy. Hello Tanu. The child is busy with his toy. Busy with something. But here in all these sentences, busy is an adjective only. Here busy is not a verb. If you want to use busy as a verb, you will say, I busied myself. Hello Aarti and Gopal. I busied myself teaching my students. I busied, second form of busy. Change y into I and add ed. I busied myself teaching my students. मैंने अपने आप को बिजी कर दिया अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में. नेक्स्ट इज कंटेंट. वी शुड कंटेंट ourselves. कंटेंट मीन्स संतुष्ट करना. कंटेंट मीन्स संतुष्ट करना, सेटिस्फाई. ओके. वी शुड कंटेंट ourselves with what we have. Hello Shivrani. We should content ourselves with what we have. हम लोगों को अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए उन चीज़ों से जो हम लोगों के पास है. We should content ourselves with what we have. Pride. I pride myself of being an Indian.
मुझे खुद पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ. I pride myself for being an Indian. And I am proud of myself. Yeah, I am proud, P-R-O-U-D, proud of being an Indian. I pride myself, not for, of is better preposition. I pride myself of being an Indian. She prides herself of being loyal to her husband. I hope you got it. Blame. They blamed me for the failure. Me is object, but if suppose there is no object, then they blamed themselves for the failure. Blame means आरोप लगाना. Ashamed of, शर्मिंदा. I am ashamed of myself. मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ. I am ashamed of myself for this bad behavior. मैं इस बुरे व्यवहार के लिए खुद पर शर्मिंदा हूँ. I am ashamed of my behavior. That is also correct because my behavior is an object here. I am ashamed of my behavior and I am ashamed of myself for my behavior. I am ashamed of my behavior and I am ashamed of myself for my behavior. I hope you people understood it, right? Help. We should help the poor. The poor is an object here. But suppose if there is no object in the sentence, then we should help is not a correct sentence. We should say we should help ourselves. हम लोगों को खुद अपनी मदद करनी चाहिए. Look after, देखभाल करना. We should look after our old parents. We should look after our old parents. Means we say look after our old parents. Our old parents, this is an object. But if suppose there is no object in the sentence, if we say only we should look after, then this is not a correct sentence. The correct sentence should be we should look after ourselves. We should look after ourselves. Let somebody in means किसी को अंदर आने की अनुमति दे देना. Let them in, उन लोगों को अंदर आने दो. And let myself in, I let myself in, मतलब मैं अंदर चला गया. I let myself in, मैं अंदर चला गया. Did you all understood? Did you all understand? Hello? Yes, sir. Okay. Yes. Now, there are three questions. Very good, very good. There are three questions. 21st A. Find out the error in this sentence. We enjoyed ourselves in the party a lot because food and music were fantastic. Is there any error in this sentence or not? No, there is no error in this sentence. So the answer will be E. सर ई होगा. Yes, बिल्कुल सही. E होगा. No error. No error. Very good. What about 21st B? 21st B. Also no error. We enjoyed the party a lot. Begin. No error, sir. Very good. No error. Very good. Very good. What about 21st C? 21st C? सर बी. सब ई इन द पार्टी नहीं होगा, द पार्टी होगा हाँ, या ourselves दो पार्टी. हाँ, you can say also in the A, we enjoyed ourselves in the party. Both the ways it can be corrected. So you can write either A or B. You can write either A or B. Both will be correct. Okay, guys? But remember that after open, sail, concentrate, feel or hurry, we should never use any pronoun of self or selves whether any object is there or not. ये सब वर्ब्स जो हमने बोले ओपन, सेल, कॉन्सेंट्रेट, फील और हरी के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, आपको सेल्फ या सेल्स वाला नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है. So this sentence, she concentrated herself on her studies, is completely wrong. Why? Because herself is superfluous here. It is not required.
She concentrated on her studies. She concentrated on her studies. Did you understand? Okay, before I move to the next point, I must ask you what translation. Oh my God. Oh. I must ask you a translation. Okay. And the translation is, उसने अकेले खाना पकाया. Shalu's mic is again noisy. सर फिर से बोलिए. उसने अकेले खाना पकाया. ये आदत आप लोग छोड़ दें. फिर से बोलिए. Be 100% focused. He cooked the food by himself. He, देखिए अकेले मतलब without any help ना. He cooked food without any help. He cooked food alone. हाँ, he cooked food alone or without any help, or he cooked food on his own. On his own मतलब अपने दम पर, बिना किसी मदद के, अकेले. So there are three ways. Shalini, your mic is noisy. He cooked. Shalini, I'm telling you. Shalu. He cooked food without any help. He cooked food alone. He cooked food on his own. And the fourth way is he cooked food by himself. Okay. It is the issue. He cooked food by himself. Did you all understand? So there are many ways to make this translation. He cooked food by himself. Right? वह अकेले बैठा हुआ था. वह अकेले बैठा हुआ था. He sat alone. Yes. He sat alone. He was sitting alone. He was sitting by himself. Also correct. He was sitting alone is also correct, and he was sitting by himself is also correct. I hope you people understand. Right? So 23rd question A. My classes were closed, so I was sitting with myself and enjoying the bliss of solitude. Is there any error in this sentence or not? Is there any error in this sentence? C. Yes, there is an error in C. And what should be the correction? Please tell me the correction. By myself. Yes, in place of with myself, we should use by myself. Right? Very good. Okay, we can use other pronouns also with the pronoun. We can use prepositions also, some prepositions with the pronouns of self and selves according to the sense. For example, उसने खुद के लिए या राम ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदा. राम ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदा. Ram bought a shirt for himself. For is a preposition being used before the pronoun with self or selves. Getting me? Ram bought a shirt for himself. वह अपने बारे में नहीं जानता है. He does not know anything about himself. So for about, वह खुद से बातें कर रहा था. He was talking to himself. वह खुद से बातें कर रही थी. She was talking to herself. See, I told you that we can use different prepositions with pronoun of self and selves according to the situation. I hope you people understood it, right? Yes, sir. Yes, sir. ओके. उसने खुद के बगल में अपना बैग रख दिया. उसने खुद के बगल में या अपने बगल में अपना बैग रख दिया. व्हाट शुड बी द ट्रांसलेशन?
put the bag Hmm. beside him. Very smart girl. You looked at the 25 number point and said the translation correctly. Actually when I say कि वह खुद से बातें कर रहा था, तो he was talking to himself. To is a preposition and after that himself has been used, a pronoun with self. क्योंकि खुद से बातें, खुद के सेंस में. बट व्हेन आई से उसने खुद के बगल में बैग रख दिया, देन हियर हिमसेल्फ विल नॉट बी यूज्ड. खुद है लेकिन उस खुद के अर्थ में हिमसेल्फ यूज नहीं हुआ, हिम हुआ. क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्रीपोजिशन आ रहा है बिसाइड, उससे लोकेशन या किसी चीज़ के पोजीशन या स्थान का पता चल रहा है कि कोई चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये फ़र्क समझ में आया आप लोगों को? हाँ, Yes, sir. हाँ. तो जब हम लोगों को प्रीपोजिशन से किसी चीज़ का लोकेशन या पोजीशन पता चलता है, तब उस प्रीपोजिशन के बाद सेल्फ वाले या सेल्फ्स वाले प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेल हिज नेम, स्पेशली हु आर कमिंग लेट, और हर नेम. जो लोग देर से आ रहे क्लास में वो अपना नाम बताएं. सर आपका आवाज फिर से स्लो हो गया. हम स्लो बोल रहे हैं तो स्लो हो जाता है, हम तेज बोलेंगे तो तेज हो जाएगा. ठीक है. Oh, कभी कभी ज़्यादा तेज बोलने का मन नहीं करता है, स्लो बोलने का मन करता है. मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर. हाँ, तो हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद खुद के सेंस में सेल्फ या सेल्स वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, बट प्रीपोजिशन से अगर किसी चीज का लोकेशन, पोजीशन या स्थान पता चले, तब हम लोग खुद का अर्थ रहने पर भी सेल्फ या सेल्स वाला प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे. क्लियर है? जैसे उसने अपना बैग खुद के बगल में रख दिया, तो बैग खुद के बगल में रखा तो बैग का लोकेशन या पोजीशन पता चल रहा है, तो ही पुट द बैग बिसाइड हिमसेल्फ, रॉन्ग हो जाएगा. बिसाइड हिम, क्योंकि यहाँ बिसाइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन या लोकेशन बता रहे हैं बैग का, कि बैग कहाँ है, तो बिसाइड मी, मेरे बगल में या उसके बगल में. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सेल्फ या सेल्स वाला प्रोनाउन नहीं आएगा. क्लियर है? Now we are going to start relative pronouns. Okay, relative pronouns are considered to be one of the most complicated pronouns in English grammar. no sir, बिल्कुल नहीं है, सबसे इजी तो वही. बिल्कुल, शाबाश, कि बिल्कुल नहीं है कॉम्प्लिकेटेड. इसको कैसे देखें कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? चलिए थोड़ा सा आसानी कर लेते हैं. एक छोटा सा सेंटेंस इन हिंदी एंड आई वांट यू टू ट्रांसलेट. मैं उस लड़के को जानता हूँ जो मैदान में खेल रहा है. कैन यू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश? सर फिर आप धीरे बोलने लगे, अरे का तेज आवाज. अच्छा, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो मैदान में खेल रहा है. I know the boy who is playing in the, जो भी बोल, in the playground. हाँ, जो ये कंसंट्रेशन का गड़बड़ी है कि एक बार में सुन के दिमाग में बैठता ही नहीं है, ये आप सर तो आप धीरे से बोल रहे थे. नहीं सर. अच्छा ठीक है, हम जो हाँ बोलिए. I know the guy who is playing in the field. ठीक है, I know the boy who is playing in the field. ठीक है. Sir, हाँ, I know that boy who is playing in the playground. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए सबसे पहले तो और पर यहाँ पे तो दैट नहीं ना होगा, क्योंकि दैट नहीं लगेगा. बता रहे. तो लगेगा. बता रहे. देखिए देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सेंटेंस. पहला है मैं उस लड़के को जानता हूँ, और दूसरा है जो मैदान में खेल रहा है. राइट? तो मैं उस लड़के को जानता हूँ, द जनरल ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज आई नो दैट बॉय. आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ. आई नो दैट बॉय. व्हेन आई से आई नो दैट बॉय, लिसन टू मी केयरफुली, दैट इज ए करेक्ट सेंटेंस. लेकिन जो मैदान में खेल रहा है, जो मीन्स कौन? लड़का ना. हियर व्हाट इज इंग्लिश ऑफ जो? द इंग्लिश ऑफ जो इज हु. द इंग्लिश ऑफ जो इज विच ऑल्सो,
but here we cannot use which. Why? Because which stands for things, not for human beings, and here we need to talk about human being जो मैदान में खेल रहा है. तो जो कौन खेल रहा है, जो कौन है, वो लड़का है. सो हियर जो stands for human being, and when जो stands for human being, its English is only who. Did you understand? Who is playing in the field? अब ये Yes, who sir. is playing in the field is what? It is a relative clause. Who is a relative pronoun. ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस हमने बोल दिया, who is playing in the field. गौर से सुनेंगे, एकदम आवाज बंद रखे, सब लोग अपना माइक म्यूटेड रखेंगे अभी कुछ देर के लिए सारे बच्चे, और खाली सुनेंगे ध्यान से ना. बी अटेंटिव. माइक बंद है, कैमरा बंद है, आप उधर सो भी जा सकते हैं, टहलने भी निकल सकते हैं, आसमान भी निहार सकते हैं छत पे बैठ के, बट वो नहीं कीजिए, फोकस्ड रहिए, ध्यान से सुनिए. हमने कैमरा टर्न ऑफ आपका इसलिए करवाया है ताकि आपका मोबाइल डेटा ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है. और हो सकता है आप बेड में हो या अस्त व्यस्त हो वहाँ पे, तो वो कैमरा ऑन होने पे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए. तो इसके बावजूद भी आपको फोकस्ड होना है. गौर से सुनिए. मैं उस लड़के को जानता हूँ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज जो मैदान में खेल रहा है. तो मैं उस लड़के को जानता हूँ. जनरल ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज आई नो दैट बॉय. एकदम हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सीखें. आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ. आई नो दैट बॉय. क्लियर है. जो हु क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन. When we talk about person, we use who in the sense of जो. Who is playing. Who means कौन भी होता है. कब? जब हम प्रश्न पूछ रहे हो तब. But here we are not asking any question. We are telling somebody. When we tell somebody something, who means जो, not कौन. We are not asking a question कि कौन खेल रहा है. We are telling, we are giving information कि जो खेल रहा है. तो जो आदमी खेल रहा है, जो लड़का खेल रहा है. Who is playing in the field या playground. Who is playing in the. अब वहाँ हमने जो बोला था I know that boy, वहाँ that is wrong now. Why? Because ये who is playing ये पूरा का पूरा relative clause है. Who एक relative pronoun है. Relative pronoun क्यों? तो पहले pronoun क्यों? Pronoun means a word that stands for a noun. We have already learned the definition of a pronoun. Pronoun means a word that stands for a noun, right? Tell me yes or no. Tell me yes or no. Turn your mics on and tell me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Very good. Very good. Very good. So, Yes, sir. who stands for a noun here? Who stands for a noun here? The moment we say who stands for a noun here, it becomes a pronoun, and because it is relating two sentences altogether, that's why it's a relative pronoun. So who is a relative pronoun? Who is a relative pronoun? Who is playing? So when there is a relative pronoun after any noun, here see, I know that boy who is playing. That boy is a noun, and after this noun we are using a relative clause. Who is playing there? Who is playing there is a relative clause, because this clause means a sentence. A small sentence inside a big sentence is known as clause. This is the hint, or what should I say, desi type of definition of clause that you can understand very easily. There is a big sentence, I know that boy who is playing in the field, and inside this big sentence there are two small sentences. I know that boy is also a clause, and who is playing in the field is also a clause. So if after a noun there is a relative clause, why relative clause? Because this is a clause and this starts with a relative pronoun. Relative pronoun is a pronoun that stands for a noun, at the same time it connects two sentences. अपना माइक म्यूट रखो बच्चों, नहीं तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब हो जाएगा. माइक में ही सांस फूंकते हैं, ठीक है. हाँ, तो आई नो दैट बॉय हु इज प्लेइंग. तो यहाँ पर जब एक नाउन के बाद इफ देयर इज एनी रिलेटिव क्लाउज, देन विद दैट नाउन यू कैन यूज ओनली द, नॉट दिस, नॉट दैट, नॉट दीज, नॉट दोज, नॉट माई, आवर, योर, कुछ भी नहीं. नो अदर डिटरमाइनर, ओनली द कैन बी यूज्ड. I hope you people understood it, right? Tell me yes or no. Tell me yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Respond करके तुरंत माइक म्यूट कर देना है. माइक अनम्यूटेड नहीं छोड़ना आपको, ठीक है. वेरी गुड. तो एक चीज आपने सीखा, दो चीजें आपने सीखी कि जो का सेंस आए, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन वी शुड यूज हु. और जब कोई रिलेटिव क्लाउज आ जाए तो उस नाउन के साथ दिस, दैट, दिस, दोज, माई, आवर, योर, कोई डिटरमाइनर नहीं यूज करेंगे. वी विल यूज ओनली द. आई होप यू अंडरस्टूड इट गाइस. टेल मी यस. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. One more example that you should try on your own. You can just try it by writing in your notebook also if you are not capable of doing it orally only, okay? मैं उस शिक्षक को जानता हूँ या जानती हूँ जो यहाँ पढ़ा रहे हैं.
मैं उस शिक्षक को जानता हूं या जानती हूं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं। I know the teacher who is teaching here. Who is teaching there? I know the teacher who is teaching here. Sir, I know the teacher who is teaching here. Very good. I know the teacher who is teaching here. Very good. I know the teacher who is teaching here. All of you are very smart. I'm really happy. One more example. Are you ready to practice? One more example. Yes, sir. जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं वह बहुत मेहनती हैं। I am. The teacher who is teaching here is very laborious. Okay. जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं वह बहुत मेहनती हैं। The teacher who is teaching here is very laborious. Okay. These two students responded. The teacher who is teaching here is very laborious. Okay. Shreya is also correct. Radha is also correct. Roshni is also correct. And I think all of the students have made the same translation. Right, guys? Sir, हम Yes, sir. Yes. All of you three are correct. All of you are correct. As I told you, Radha, Roshni and Shreya, I took all the three names, and I expect all of you have made the same translation, right? The teacher, Yes, sir. the teacher who is teaching here, the teacher who is teaching here, the teacher who is teaching here is very laborious. If somebody has written the teacher who is teaching here, he is very laborious, then he is wrong, that person is wrong. यहाँ he का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि who is laborious? The teacher is laborious. The teacher is laborious. कुछ स्टूडेंट जंप इन जंप आउट कर रहे हैं, शायद उनका इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है क्या? ऐसे तो किसी का भी इंटरनेट गड़बड़ होगा तो यहाँ रिपोर्ट आ जाएगा मेरे स्क्रीन पे फटाक से। एनीवेज, स्टेबल रहिए ताकि आप मिस ना करें पढ़ाई। व्हाट आई वाज टेलिंग, हम फिर से एक बार हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है? एसटीसी विद्याश्रम चीपेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन दे रहा है, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। सारे कोचिंग, घमंड से नहीं बोल रहे हैं हम, ये बातें इसलिए इंस्टिल कर रहे हैं बार बार दिमाग में आप लोगों के, ताकि हमको ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके हमारे इंस्टीट्यूट में। एक मिशन में है कि हम एकदम फी को और सस्ता कर दें जितना पॉसिबल हो सके। हेलो गरिमा, यू ज्वाइंड रियली वेरी लेट बेटा। हम जितना फी को सस्ता कर दें ताकि मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं कर सके कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं पैसों के कारण, और वही बेस्ट एजुकेशन। सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस भी इस मिशन में अभी लगा हुआ है, एसटीसी विद्याश्रम भी पूरी तरह से। और बोलने का आवाज नहीं आ रहा है। बोलने का पर्पस, आवाज तो जा रही है, धीरे धीरे आ रहा था। सबको धीरे धीरे जा रही है आवाज। No, sir, ठीक है voice. नो सर ठीक है। पेपर्स भी धीरे आ रहा है। हाँ, तो किसी किसी का जो है ना, कभी कभी इंटरनेट आपका फ्लक्चुएट करता है मोबाइल डेटा का, इसके कारण धीमे होता है आवाज किसी किसी का। जिस टाइम में जिसका फ्लक्चुएट करेगा उसको धीमे सुनाई पड़ेगा, ठीक है? एक आध सेंटेंस, एक आध वर्ड ऐसा जाता होगा। तो पर्पस ये है बताने का कि एसटीसी विद्याश्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस को। क्यों? क्योंकि हम लोग अफोर्ड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी कम से कम फी में, ठीक है? हम लोग हर संभव बेस्ट टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल करते हैं पढ़ाई के अंदर। टेक्नोलॉजी से पढ़ाई आसान हो जाती है। जैसे अभी आप घर पे बैठे होते लेकिन पढ़ाई हो रही है। 6-7 वाले बच्चों के लिए बता दें कि हमने 2 दिन क्लासेस चलाए हैं ऑनलाइन, लेकिन बच्चे उतने अवेयर नहीं थे। तो कुछ बच्चे हालांकि आज कॉल किए कि सर हम लोग को चाहिए ऑनलाइन क्लासेस, तो हम बोले आप सैटरडे तक रुक जाइए, मंडे से अगर नहीं खोलने का अलाउ हुआ फिर से कि नहीं खोलना है कोचिंग सेंटर, तो 6-7 वाले का भी सिंसियरली ऑनलाइन क्लासेस सुबह में चलेगा, ठीक है? और चूंकि मार्केट 6:30 तक खोलने का इवनिंग में अलाउ कर दिया गया है 16 तारीख से, तो अगर मंडे से कोचिंग नहीं खुलता है, हिंदी में बता रहे ताकि सब लोग कोई मिसअंडरस्टूड ना करे, कन्फ्यूजन ना हो, अगर मंडे से कोचिंग खोलने का अलाउ नहीं होता है तब उस कंडीशन में
मंडे से इंग्लिश का क्लास 3 से 4 शाम में चलेगा और 4 से 6 बजे तक आपका मैथ साइंस सोशल साइंस का चलेगा, 40-40 मिनट का पीरियड ऑनलाइन। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। सिर्फ 3 बजे से? हाँ, 3 या 3:15 से, 3 या 3:15 से, ठीक है। फिर हम लोग का स्कूल तो फिर हो जाता है। कितने बजे स्कूल छोड़ता है आप लोगों को? सिर्फ 2:15 तक तो हो ही जाता है, फिर आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे कि कुछ सॉल्व करके निकाल ले, लेकिन वो बेस्ट होगा क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का स्कूल हो गया 6 बजे से, वो या तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 6:20 से कुछ बच्चों का है, ठीक है। तो हम लोग का स्कूल दूर है तो हम लोग का 7 ही बजे जाना पड़ता है और 8 बजे से स्टार्ट है। हम समझते हैं ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा, उसके साथ हम लोग सबको एडजस्ट करके मैनेज करना होगा, थोड़ा थोड़ा सब लोगों को एडजस्ट करना होगा, है ना। टीचर को भी, स्टूडेंट को भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा ये कैसे सॉल्व करें इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव। तो अगर हम बोलते हैं कि द टीचर हु इज़ टीचिंग हेयर ही इज़ लेबोरियस, तो ये ही सुपरफ्लुअस होगा, गलत होगा यूज़ करना। वाई? बिकॉज हम बोल रहे द टीचर इज़ लेबोरियस। कौन सा टीचर? हु इज़ टीचिंग हेयर, जो यहाँ पढ़ा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपने एक पॉइंट और सीख लिया कि द टीचर के लिए हम लोग ही नहीं यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया है, द टीचर हु इज़ टीचिंग। तो अगर किसी भी नाउन के लिए पूरा रिलेटिव क्लाउज आ जाता है तो उसके लिए दूसरा प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। कैसे बनाओगे ट्रांसलेशन? जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। The children who are teaching here are very intelligent. So the students who are studying here are very intelligent. Yes, the students who are studying here are very intelligent. The students who are studying here, they are very intelligent is wrong. they का यूज नहीं करना है यहाँ पर। क्लियर है? आई होप को सबको समझ में आ गई होगी बात, हाँ या ना बोलो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आपकी आवाज़ ही एक जरिया है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि आप एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैमरा ऑन करवाएंगे हम नहीं। 2 कारण हमने बताया, एक डेटा लॉस आपका, और दूसरा अभी आप घर में सुबह सुबह किस अस्त व्यस्त कंडीशन में हो नहीं पता चलेगा, तो कैमरा में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। हम तो ठीक है एकदम ग्रूम होके आके बैठ जाते हैं कैमरे के सामने। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी बेड में से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल दूसरे तरीके का लेते हैं। मैंने वह किताब पढ़ी है जो तुम पढ़ रहे हो। मैंने वह किताब पढ़ी है जो तुम पढ़ रहे हो। क्या आरती एंड गोपाल have left the class? Why? मैंने वह किताब पढ़ी है जो तुम पढ़ रहे हो। Any idea? I have read the book. अब यहाँ फिर से जो आ गया, लेकिन गौर कीजिए कि ये जो किसके लिए? पर्सन के लिए है या थिंग्स के लिए? किसके लिए? थिंग्स के लिए। थिंग्स के लिए। तो थिंग्स के लिए जब जो आ जाए तब वहां पर हम लोग हु का यूज नहीं करेंगे, फिर विच का यूज करेंगे। I have read the book which you are reading. Correct. Aarti and Gopal have come back to the class. That's really nice. So I had read the book which you are reading. Yes, all of you are correct. I think everybody has made the same translation. I have read the book which you are reading. Which you are reading. जो तुम पढ़ रहे, you are reading. Which you are reading. We can't say I have read that book which you are reading. क्यों? क्योंकि which you are reading फिर से एक relative clause है, और जब किसी भी noun के साथ relative clause आ गया हो तो उस noun के साथ सिर्फ the यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा डिटरमाइनर यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव रेड द बुक विच यू आर रीडिंग। ओके,
जो किताब तुम पढ़ रहे हो वह बहुत मज़ेदार है। जो किताब तुम पढ़ रहे हो वह बहुत मज़ेदार है। सर बोले बोलो। the book which you are reading is very interesting. The book which you are reading is very interesting. वेरी गुड। जो किताब, द बुक विच तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? रिपीट कर रहे हैं, द बुक विच यू आर रीडिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। So that भी सही है। यस सर, ये भी तो सही ही है। नहीं, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तब तो which और that दोनों लगेगा। हाँ, ये इनकरेक्ट है। सुन लीजिए, द बुक विच यू आर रीडिंग, द बुक विच यू आर रीडिंग। अब ये दैट क्यों ला रहे हैं फिर से? द बुक के लिए तो पूरा क्लाउज आ गया विच यू आर रीडिंग, और जब किसी नाउन के लिए कोई क्लाउज आ जाए, रिलेटिव क्लाउज आ जाए, तो आप दूसरा प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, दैट यूज गलत हो जाएगा। द बुक विच यू आर रीडिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग में दैट सुपरफ्लुअस है। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे वन बाय वन। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. गुड। एक और एग्जाम्पल, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वह बहुत यूजफुल है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वह बहुत यूजफुल है। सर बोले बोलिए। the chapter which you are studying is very useful. The chapter which you Chapter are that studying. you are reading is very useful. 3 students said, and all the 3-4 are correct. The chapter which you are studying or reading is, or learning, कोई भी बोल सकते हो, is very useful, right? The chapter which you are reading, learning or studying is very useful. Clear है? Yes, sir. Yes sir. चलो, Yes. यानी आपने who और which को समझ लिया कि कैसे यूज करना है, right? Who is used? Yes, sir. Who is used only for Subject. Human beings. human beings, Person. Human beings and persons. Person. person, and which is used for things, Things. है ना? Non-living thing. थिंग्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉयज में से सिर्फ एक ने ज्वाइन किया है ना, शुभम ने ना, तो बच्चों हम समझा ही सकते हैं। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर तो आपको एक बार तो पछताना पड़ेगा। आप दूसरों के सामने एक्सेप्ट कीजिए, नहीं अफसोस लगेगा कि सर का बात क्यों नहीं माने थे। सर हम भी हैं सर। नहीं, 10th के बॉयज में से तुम तो हो मोहित, ठीक है? आदित्य नहीं है तुम्हारे क्लास से, देखो, ठीक है? यस सर। सोने का आप क्या है, पूरा जिंदगी सोते रहिए, मजा आएगा, ठीक है? मजबूरी है ना बेटा कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमको भी मजा आता कि सब लोग क्लास में बैठे होते, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप समय के हिसाब से खुद को ढालो, एडजस्ट करो, जो हालात हैं उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ, पूरे लाइफ के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हें मारा है। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हें मारा है। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हें मारा है। जिसने, अब जिसने का अंग्रेजी आ I know that man who had killed you. अच्छा killed सोचो। I know the man who has bitten you. Yes, this is correct. I know the man who has bitten you. Yes, I know the man who has bitten you. Killed कैसे हो Sir, जाएगा? I know the person हाँ, who has bitten me. yes correct, man, person जो बोलो।
एक और, मैं उस आदमी को, बीटन विथ, हाँ बोलो, फिर से बोलो राहुल। बीटन विथ हो सकता है। तो हम बोल क्या रहे, सब लोग तो वही बोल रहे भाई, हु हैज बीटन यू। किल्ड तो गलत है, अगर मार ही दिया तुमको जान से तो हम बात किससे कर रहे हैं? हम तो बोल रहे तुम ही से ना कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हें मारा, तो हम तो तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको किल कर दिया तो बात कैसे कर रहे हैं? सोचो, है ना? इसलिए बीटन हो गए हम मारने का, ठीक है। अच्छा चलिए एक और, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ा रहे हो, जिसे तुम पढ़ा रहे हो। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ा रहे हो। I know the man whom you are teaching. Sir, I know that person whom you are teaching. So I I know the person ओके, शालू का माइक थोड़ा अच्छा नहीं है, साथ नहीं दे रहा, वो शायद ईयरफोन जो यूज कर रही है ना उसके वजह से गड़बड़ी होगा। अब हम बोले पहले तो दैट नहीं लगेगा, आई नो द मैन या पर्सन होगा, द मैन या द पर्सन। पूछो क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर किसी भी नाउन के लिए कोई भी रिलेटिव क्लाउज आ गया है तो उसके साथ दिस, दैट, दिस, दोज, एनी डिटरमाइनर कैन नॉट बी यूज्ड, ओनली द कैन बी यूज्ड। डिड आई टीच यू और नॉट? जस्ट नाउ आई टॉट यू दिस थिंग जस्ट नाउ, राइट? Yes. तो इसको ध्यान में रखो कि यहाँ दैट नहीं लगाना है, पहले हो जाएगा आई नो द मैन। अब जिसे के लिए हु नहीं होगा, हुम होगा, इस बात को ध्यान रखो। Yes, sir, whom होगा। हुम तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, हुम यू आर टीचिंग, राइट? आई नो द मैन हुम यू आर टीचिंग मीन्स यू आर टीचिंग ए मैन एंड आई नो दैट मैन, राइट? दिस मीन्स दैट I know that man, you are teaching him, so I know the man whom you are teaching, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. I know the man whom you are teaching. जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं वे बहुत तेज हैं। जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं वे बहुत तेज हैं। The children The students whom you are teaching are very intelligent. नहीं, हमसे परमिशन लेके बोले, ऐसे 2-3 लोग एक साथ बोल देंगे तो अच्छा नहीं होगा ना कि सर हम बोले, हाँ बोलो। The students whom you are teaching are very intelligent. ओके, अब राधा बोलिए। The children whom you are teaching are very intelligent. ओके, कोई और बोलना चाहते हैं? हाँ, श्रेया बोलिए। The students whom you are teaching are very intelligent. ओके, श्रेया बोलिए, श्रेया प्रिया। The children whom you are teaching are very intelligent. यस, जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा, द स्टूडेंट्स whom, नॉट who नहीं होगा, whom होगा। द स्टूडेंट्स whom you are teaching, they are very intelligent। ये सही है कि गलत है? गलत है। Wrong is sir. तो दो बार। और हैंड रेज हटा लीजिए जब एक बार आपको चांस मिल जाए तो, हैंड रेज करने पर, है ना, जैसे राधा। द स्टूडेंट्स whom you are teaching are very intelligent, यहाँ दे का यूज करना गलत हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर दें, समझ गए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने whom भी समझ लिया, which भी समझ लिया और who भी समझ लिया। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आप who यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तान्या हैज जम्प्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, जहाँ जहाँ पर आप who यूज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आप whom यूज कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आप which यूज कर रहे हैं, उन सब जगहों पे आप तीनों के बदले that का यूज कर सकते हैं। कोई who के जगह पे भी that हो सकता है, तान्या हैज कम बैक। whom के जगह पर भी that यूज कर सकते हैं और which के जगह पर भी that, की जगह पे भी। हाँ that यूज कर सकते हैं। who, whom और which
तीनों के जगह पर आप चाहें तो दैट यूज़ कर सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ गई सब लोगों को? हाँ ना बोल देना एक बार। यस सर। तो Yes. रिलेटिव प्रोनाउन में बस इतना ही। अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट डे, और तब अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे 26 पॉइंट का, अभी नहीं करवाएंगे। आज इतना ही पे रैप अप कर दीजिए। आई होप कि सब लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अपने बाकी दोस्तों को मोटिवेट करते रहिए कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। जैसे ही सरकार परमिशन देगी ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस भी खोल दिए जाएंगे, अगले ही दिन खोल दिए जाएंगे, जिस दिन परमिशन मिलेगा उसके अगले दिन। ठीक है, तब तक क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर क्लासेस में नहीं रहेंगे तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और पढ़ाई से ज़्यादा समय तक दूर रहने पर पढ़ाई दिमाग में से चली जाती है। और बोर्ड ईयर है आप में से बहुत सारे बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंज है। टाइम बहुत प्रीशियस है कि अगर इस दौरान जो कोचिंग का लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट एक पेपर क्लियर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी हो जाएगी। आप बाकी का टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे से दे पाओगे। थैंक यू। I hope you enjoyed the class. Thank you very much. Leave कर जाओ बच्चों। Yes.